Yeah, hello. Tell me. Yeah. So what had happened is, as you must be knowing, I have shifted to Bangalore some few years back, 3 to 4 years back. Right. And lately, past 1 year, I just got the idea of looking for a site in Bangalore. Mm. So I was going through the Facebook, whenever there is some plot, a site, they will be having some ads. Mm. So through Facebook and various other contacts marketing, I was getting various calls. In and around this March, I would say March or February, I received a call from one of the sales guy saying he's from Rock Garden, that project. Okay. And then he said, I'll arrange for everything. This is in near Devnali, very upcoming place and this and that, which is really true. Devnali lately has become a very, upcoming site and really sought after, sort of. Devnali, is it? Devnali, that is the airport. Devnali. This is very close to the airport, just around 14 kilometers. All these things have, IT park and all is going to come up. So in and around the first week of March, I and my son, we went and saw the place. They had marked plots. There was really nothing in that place, nothing at all. Just they had marked the plots with various numbers and a little bit of a sort of a road, a slight, kacha road-like thing to see the plots. Yeah. Everything was open. Everything was open. There is no gates, nothing. Just an open plot near IDC. That place is known as Interconnected Village. Okay. Inter-Village Connection. That is IDC Road, quite famous near airport. So we saw the plot and everything, and as usual, he started giving me some, their search papers and everything, and he said, this is a SBI approved project. So when State Bank of India approved project. That is what he told me. Okay. So I was, quite impressed because bank approved, our bank is a little bit, tough about approving things. Then later on he started, as usual, the marketing people will be following up with you. He started calling me daily, what happened, did you think? I said, I need some time, I'll think it over, I want to see the place once again. So he said, no madam, you give 1 lakh rupee booking amount. All that stuff, he started pestering me. This went on for more than 1.5 months. Okay. He also WhatsApped a letter saying this is a SBI approved project. After that, I did not go through the letter very keenly at that time. I just saw some SBI letterhead and all. I said, okay, maybe this is some approval letter and all. And then he gave me, there was some number in the letter saying Shashi. I called this Shashi Bagga. It's a very, बहुत अच्छा project है. एकदम first class है. SBI का approved है. ऐसा है, वैसा है. I thought Shashi was an employee of the bank at that point of time. Oh, you thought he was a bank employee. Okay. Yeah, because his number was there in the letter. Okay. And then I really started trusting these people. बैंक का लेटर हेड है, शशि भी बहुत उसको प्रेज कर रहा है और शशि भी मेरे साइड में बात कर रहा था, मैडम वो बार्गेन करो, थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाएगा. So what was it being advertised as? Rock Garden or something, right? हाँ, रॉक गार्डन करके अप्रूव प्रोजेक्ट ऑफ SBI का एक लेटर हेड में दिया था मेरे को. उसमें किसी का नंबर था, शशि का. Got it. ऐसा 1-1.5 महीना चला और मैं शशि को हमेशा फोन करती थी कि बाबा ये हमारा बैंक का कोई बंदा है. उसके बाद मेरे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा 1-1.5 महीने में. But you didn't ask outright, are you from SBI bank or anything? You did not ask him. नहीं, वो कुछ ब्रांच का नाम ले रहा था. एक ब्रांच है हमारा वो. मेरे को ब्रांच का नाम अमृतहल्ली करके है, वो देवनाली जाने के रास्ते में ही है. So he implied also that he was an employee. हाँ, अमृतहल्ली ब्रांच ऐसा वैसा. तो मेरे को लगा शायद ये अमृतहल्ली ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है. वो हमेशा मेरे को कॉल वगैरह करता था. ये चलते रहा 1-1.5 महीना. फिर आफ्टर दैट I don't know what came into my mind. I said, ठीक है ना, 1 लाख रुपए डालेंगे. And they started pressurizing me. तुमको थोड़ा कंसेशन भी हम लोगों ने कितना सारा कम किया. हाँ, I forgot to tell you. When I had first inquired, they said it is some 2,800 कुछ कोट किया था. 2,800 per square feet. पर स्क्वायर फीट वो प्लॉट का. वो 1.5 महीना तक रोज 100 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कम करते गए. Oh, okay.
मैं पैसा दे ही नहीं रही थी बुकिंग, अल्टीमेटली 2000 तक आ गए। ओके। हाँ, दिस इज द मैक्सिमम वी आर गिवन, तुम बैंक के हो, ऐसा है वैसा है। शशि ने भी बात किया है, आपको 2000 में दे रहे हैं। ओके। तो मे बी इम्प्रेस। So what is the total amount coming to? I had chosen 2984 कुछ, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट पकड़ के चलो। तो उसका टोटल कॉस्ट आ रहा था 63 lakhs, इंक्लूसिव ऑफ ऑल सेल, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। राइट। तो उन लोगों ने मुझे क्या बोला, तुमको पहले 1 लाख रुपए का बुकिंग देना है, 10% देंगे तो बाद में 6 लाख के अराउंड आपका एग्रीमेंट करके, लेकिन आपको पूरा पैसा 31st के पहले देना है। 2000 किया ना आपका 31 मार्च। अरे आपका 2000 किया ना हमने ये रेट। राइट। हाँ, तो 31st के पहले बहुत प्रेशर आने लगा। मैंने बोला देखो मेरे को नहीं चाहिए ये ऐसा वाला 10 दिन में तो ऐसा सब मेरे को नहीं चाहिए, नॉट गोइंग फॉर इट, आई टोल्ड देम। देन दे लूजन द लिटिल बिट, बोला ठीक है आप 15 दिन में दे दो। मैंने बोला बैंक ऐसा मंथ ईयर एंड में सब ऐसा नहीं करती है, टाइम लगेगा, मेरा प्रपोजल जाएगा, ये होगा वो होगा, लोन पास होगा, ऐसा मेरे को कमिटमेंट नहीं देना है। ओके ठीक है 5 अप्रैल के अंदर आपको पे करना है। ऐसा सब करके मैंने 1 लाख रुपया पे कर दिया उनको 16 अप्रैल को। एंड मेरे को कुछ भी डाउट नहीं आया। मैंने बोला अरे ये तो अप्रूव है, ये है वो है। तो बोला अभी आप 10 लाख भी डाल दो, हम एग्रीमेंट आपको भिजवा देते कल तक। 10% डाल दो, सॉरी। सो आई पुट द 10%, टोटली आई हैड पुट 6 लाख समथिंग। ओके। इमीडिएट मेरे अकाउंट से उनके नेफ्ट कर दिया, उनके अकाउंट में ऑर्डर यूज करके HDFC का। इमीडिएटली दैट गाय केम विद द एग्रीमेंट, मैं ही जाऊंगा वो ब्रांच में जाके सब सबमिट करूंगा तुम्हारा फाइल वाइल, लोन के लिए जो भी है करके गया वो मेरा सब पेपर्स लेके। फिर मेरे ऑफिस में बोला कि हम उसको सर्च के लिए भेज देते हैं, सर्च रिपोर्ट जो लीगल सर्च करते हैं। तो उन लोगों ने लीगल सर्च में भेजा एक। तो उन्होंने क्या किया सर्च के लिए, वो भी थोड़ा बिजी था, बोला मैडम वो सर्च को किधर देना है। तो उसने फिर उसी सेल्स वाला कॉल कर रहा था ब्रांच में, वो फाइल वाइल लेके गया था, उसके पास नंबर था। तो बोला मैं करवा देता हूँ ना, वो आपका लीगल भी करवा देता हूँ। वो सर्च रिपोर्ट भी उसी ने करवाया जो हाँ, आपका एम्पैनल्ड है ना, हमारा लॉयर है, हमको पता है एम्पैनल, वो शशि ने बोला है। अच्छा, अभी शशि का मेरे को पता चलने लगा ये सब पैसा देने के बाद कि शशि इज अ काउंसलर। हमारे SBI में वी आर अलाउिंग आउटसाइडर्स टू गिव अस लीड्स, प्रपोजल्स लाइक, और उनको कमीशन बेसिस में रखते हैं, होम लोन काउंसलर बोलते हैं उनको। ओके। मीन्स बाहर रखते पीपल यू नो विल वांट टू टेक द लोन बट दे मे नॉट वांट टू कम टू द ब्रांच। गॉट इट। तो वो काउंसलर था हमारा SBI का, ही वाज नॉट अ स्टाफ। तो तभी पता चला मेरे को। तो मैंने बोला अरे शशि को बात किया, मैंने बोला आपने कुछ अमृतहल्ली ब्रांच बोला था। नहीं मैडम, ऐसा मैंने बोला ही नहीं था आपको। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि उसने बोला नहीं था लेकिन इम्प्लाई किया था। ओके, वेरी क्लेवर। ठीक है ना, तो मेरे को भी कुछ बोलने को नहीं होती। ही हैड नॉट एवर टोल्ड मी मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, लेकिन बात ऐसा करता था कि मैं प्रिज्यूम किया कि वो ब्रांच मैनेजर है। अच्छा। अब जब पेपर गया उधर हमारे ब्रांच में, तो वो ब्रांच मैनेजर ने देखा सब पेपर और मेरे को कॉल किया। बोला मैडम यहाँ तो आप टाई अप का बोला अप्रूवल है, बट व्हेन आई एम रीडिंग दिस लेटर वेरी केयरफुली, ही गॉट ऑल द ओरिजिनल्स। तो मेरे को तो व्हाट्सअप किया था, राइट। तो उसने पूरा पढ़ा था। तो ही टोल्ड मी, ब्रांच मैनेजर, कि मैडम वी हैव टू डू अ सर्च फॉर दिस। तो नॉर्मली हमारा टाइप प्रोजेक्ट में सर्च का जरूरत नहीं रहता, बिकॉज वो पूरा प्रोजेक्ट हैज बीन ऑलरेडी क्लियर्ड बाय द बैंक विद यू नो एवरी एस्पेक्ट बाय द लॉयर। राइट। तो दोबारा क्यों फिर करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला, ब्रांच मैनेजर ने बोला मैडम ऐसा लेटर में लिखा है इंडिविजुअल सर्च टू बी डन फॉर इंडिविजुअल लोन्स। तभी मेरा थोड़ा अलर्टनेस हुआ, मेरे माइंड में कुछ अलार्म रिंग हुआ। ऐसा क्यों? Because I am very well versed with the bank's procedures. And I am very sure if there is a tie-up, there won't be an individual search. Correct. तभी मेरा थोड़ा डाउट चालू हो गया। एनीवेज उन लोगों ने धड़ाधड़ एकदम उनका वो एडवोकेट के पास लेके गए, पूरा सर्च बना के लाया। हाँ, रातों रात। उन लोगों ने, मतलब नाउ इट इज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम शशि एंड दैट ग्रुप।
करेक्ट, एकदम। वो शशि, वो सेल्स वाला और अपना लॉयर, नो डाउट लॉयर का एम्पैनल्ड है एसबीआई का, एसबीआई का एम्पैनल्ड है वो। ओके। लेकिन उनके इसमें है, लाइक व्हाट डू यू से, उनका गिरो जैसा है। राइट, अंडरस्टूड। तो आ गया उसका रिपोर्ट रातों रात। तो इसने भी क्लीन चिट दे दिया बराबर। अभी ब्रांच मैनेजर का क्या है, उसके हाथ से जाने वाला है लोन, ही बिकम्स अकाउंटेबल टुमारो। राइट। तो वो मेरे को वही फर्स्ट टाइम तो बोला मैडम सर्च तो लगेगा। मैंने बोला ठीक है यार, बिकॉज इज अ कलीग, नो आई कांट पुट हिम इनटू ट्रबल। मैंने बोला कर ले चलेगा। तो सर्च भी निकल गया उनके गिरो के बंदे से। तो मेरा भी थोड़ा अलार्म सेट हुआ था, ब्रांच मैनेजर का भी अलार्म सेट हो गया था। तो उसने मेरे को कॉल किया, मैडम ये रिपोर्ट तो आया है लेकिन मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं लगा है करके, एंड आई वांट अ सेकंड ओपिनियन। मैंने बोला गो अहेड, बिकॉज हिज इंट्यूशन विल बी, ही हैज रेड द रिपोर्ट। बोला उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा बैंक इंसिस्ट करती है कि नॉर्मली अगर गिफ्टेड है या पावर ऑफ अटर्नी से कोई सेल परचेज हो रहा है, देन बैंक इंसिस्ट ऑन अ सेकंड ओपिनियन ऑन 2 कंडीशन। सो ही सेड इसमें दोनों दिख रहा है, मेरे को एक गिफ्टेड का कुछ दिख रहा है और एक पावर ऑफ अटर्नी भी दिख रहा है, तो मैं एक सेकंड ओपिनियन को जा रहा हूँ एज पर अवर बैंक नॉर्म्स। मैंने बोला गो अहेड। तो उसने उसका बैंक के पास के एक लॉयर से सर्च कराया। अभी एकदम क्लियर हो गया, जब वो सेकंड एडवोकेट के पास गया देन थिंग्स बिकेम मोर क्लियर टू अस। उन्होंने हमको बोला, द लॉयर कॉल्ड मी, मैडम यू आर बाइंग दिस प्लॉट। मैं सेड यस। सर आपको पता है क्या इसमें एक फाइनेंस कंपनी का ये है, चार्ज है। मैंने बोला अच्छा। बोला हाँ गुजरात का है ये कंपनी। तो आई वॉज बोल्ड ऑफ that one, this was that auto company, no? That to Gujarat का company का charge, और वो भी why a Bangalore, I mean landowner will mortgage it to one Gujarat auto finance company, right? Exactly. What was the name of that auto finance company? खुशबू ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ था। हाँ कोई वो हाईवे पे था अहमदाबाद का। तो आई थिंक बाय द टाइम I had seen some video of us also and I knew about you. मेरा जब ये एंटेना अलार्म सिस्टम चालू हो गया तो I decided to I think call you also. Right. Yeah. So that is when you started, we started having a conversation. Right. Exactly. And आपको वो वहाँ का चार्ज लिख के आया, that they have got a charge, they have got a lien on this. हाँ खुशबू ऑटो फाइनेंस। हाँ वो रॉक गार्डन देवनाली का जो साइट है, ये पूरा कुछ 7 करोड़ एग्जैक्ट लोन अमाउंट भी था। उन्होंने लोन दिया है पूरा वो जगह को मॉर्गेज करके, और देन यूज को ये एमडी जो भी है इधर का कोई दत्ता नाम है, कृष्णा दत्ता। राइट। एंड दिस इज समथिंग दे हैड नॉट डिस्क्लोज्ड एनीथिंग अबाउट अस। नो। तो मैं उस सेल वाले को पकड़ा, मैंने बोला ये क्या है यार। एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग, अच्छा ऐसा मॉर्गेज है क्या? आई सेड व्हाट यू मीन, तेरे को पता नहीं? बोला नहीं मैडम आप फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु आर टेलिंग मी अबाउट दिस इज न्यूज टू मी। दिस इज व्हाट द सेल्स पर्सन इज क्लेमिंग। मेरे को कुछ भी पता नहीं इधर का अंदर का, बिकॉज मैं खाली सेल्स का काम करता हूँ। उधर ऑफिस में क्या होता है वो तो मुझे आई डोंट फॉल इनटू दिस। एक बार आप लोग पहुंच गए उधर, फिर उन लोग हैंडल करते पेपर, मैं उसमें गिरता नहीं हूँ। वेरी क्लेवर। तो मेरे को इनका सब गिरोह का थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था। तो बाद में खुशबू का जो आया ना, तो मैंने हमारे एक ब्रांच को उधर कॉल किया आजू बाजू का, मतलब भैया जरा जाके एक फोटो तो निकाल के ला। तो उसका ब्रांच के बाजू में था, उसने फोटो निकाला खुशबू फाइनेंस। तो देखा वो फोटो एकदम डेलिपिटेटेड बिल्डिंग है। सम सारी एम्पोरियम, मुझे ऐसे याद आ रहा है फोटो जब हमने देखा था, इट लुक लाइक अ सारी एम्पोरियम जिसके अंदर एक बोर्ड डाल के रखा है फर्नीचर का कुछ था, फर्नीचर। हाँ सारी, ओके, फर्नीचर एम्पोरियम समथिंग लाइक। हाँ और नीचे सब वही था, सब शॉपिंग कुछ था, ऐसा छोटा छोटा कुछ ये रहता है ना अपना कॉम्प्लेक्स जैसा, सब स्मॉल शॉप्स विल बी देयर इन अ बिल्डिंग। और उसके अंदर एक साइनेज लाइक इट इज अ साइड बिजनेस ऑफ द पर्सन ओनिंग दैट प्लेस, इट इज दैट फोटो। तो वो जो ब्रांच मैनेजर है उसने फोटो भी निकाला और उसने वो साइट में से
एनबीएफसी का कुछ निकाल के दिखाया कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी कुछ दिख रहा है साइट में. ओके, सो खुशबू फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस वाज देयर एज अ लेजिट कंपनी. हाँ, वो दिख रहा है उसमें लिस्ट में, बट एनबीएफसी करके. बट वो कंफर्ट लेवल मेरा निकल चुका था. करेक्ट. और वो हमारा जो लॉयर है उसने मेरे को वही बोला कि मैडम अगर आप ये साइट के ऊपर ले रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली उनको बोलना है कि ये जो प्लॉट मैं ले रही हूँ, अब ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, ये तुम्हारा प्लॉट नंबर 33 है. उनको बोलो मैं पैसे दे रही हूँ पूरा आपको, एंड इट इज गोइंग इनटू द अकाउंट ऑफ खुशबू फाइनेंस. जाना चाहिए, ऐसा वो लॉयर बोल रहा है. दैट इज द रूल. करेक्ट. और एनओसी भी लेना पड़ेगा. देन दे शुड रिलीज द लीज. हाँ, तो वो लॉयर मेरे को बोला एनओसी लेना पड़ेगा खुशबू फाइनेंस का, कि हमको स्टेट बैंक को ये देने में इसमें कोई हर्ज नहीं है करके. वो पहला लेटर के बाद आप लोन रिलीज करेंगे तो उनको मॉर्गेज भी रिलीज करना है, चार्ज रिलीज करना है, ऐसा आपको करके लेना है, नहीं तो आपको नहीं जाना आगे. करेक्ट. तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ओरिजिनल बैंक एजेंसी का ना ओरिजिनल एनओसी. तो बहुत धड़क गया वो सेल्स वाला. हाँ, और वो उनका जो ऑफिस में जो बंदा था वो जोर से मेरे से बात करने लगे. ये तुमको क्या पता है तुम्हारा एसबीआई क्या है? हाँ, बड़ा तो तुमको कुछ रूल्स नहीं आता, एसबीआई ऐसा है वैसा है, कुछ मालूम है क्या रूल? ये तो इंडस्ट्री में चलते रहता है, आपको नहीं पता? सभी बिल्डर्स लोन लेते हैं, सभी बिल्डर्स का मॉर्गेज है, हमको क्या सिखा रहे तुम? हमने एनओसी दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सब ठीक है आप जो बोल रहे हैं, मेरे को सब एग्री टू ऑल दैट यू सी. लेकिन इधर कैच ये है कि आपने जो फाइनेंस लिया है खुशबू का कभी जिंदगी में नाम नहीं सुना है मैंने. ठीक है, चलो आपने एचडीएफसी से लिया होता, आईसीआईसी से लिया होता तो मैं समझ सकती थी. लेकिन खुशबू अभी किधर? Why will a Bangalore builder take this thing from some entity NBFC in Gujarat, वो भी छोटा वाला, क्यों ऐसा कनेक्शन क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अनयूजुअल. तो मेरा क्वेश्चन से ही उनको पता चल गया. वो तो अरे तुमको पता है क्या, वो तुम्हारा पिरामल फाइनेंस हमारे पीछे पड़ी थी, ये फलाना पीछे पड़ा था, लोन लो, हमने सबको हटा के इधर लोन लिया. उनका खुद का उन लोग ट्रम्पेट बजा रहे थे. मैंने बोला आई हैव हैड इनफ, आई वांट माय मनी बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक. हाँ, लेकिन उसके साथ में आई थिंक देयर वर अ फ्यू अदर थिंग्स दैट वर आल्सो अमिस, राइट? फॉर एग्जांपल देयर इज इन रेरा, ऑन देयर रेरा दिस थिंग वी नोटिस्ड, हम लोगों ने उसका पूरा वी स्टडीड देयर रेरा दिस थिंग एंट्रीज, and many things were missing. For example, there was no architect, as I recall. Remember I pointed out कि किधर भी आर्किटेक्ट नहीं है. I was asking you what is the development potential of the plot. They said no, airport authority से permission लेना पड़ेगा and all that. But I said नहीं, development potential कुछ तो होना चाहिए उसका. An architect should have gone through it and said that I have studied this and I'm a project management consultant and this is the development potential of the plot. You can construct आपका जो भी प्लॉट साइज है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑन इट. कुछ तो होना चाहिए. राइट. आपने मुझे वो भी बताया, आपके एग्रीमेंट में ये सब है क्या? तो मैंने सब देखा, सेल एग्रीमेंट का एक उन्होंने फॉर्मेट भेजा था. हाँ, कुछ भी नहीं था उसमें. करेक्ट. डेवलपमेंट राइट्स नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं, क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ सब ऑल वेरी लाइक बहुत फजी था. तो उसके बाद तो ऑलरेडी डाउट्स इतना सारा था और ये सब आ रहा है और प्रेशर आ रहा है पैसा. और एक बात मेरे को स्ट्राइक क्या हुआ कि वो लोग पूरा 60 लाख एक ही इकट्ठा मांग रहे थे. अच्छा, दे वांटेड द होल थिंग टू बी डिस्बर्स्ड. हाँ, अभी 6 लाख तो दे दिया था, तो बाकी का जो भी है रजिस्ट्रेशन उसी दिन होना चाहिए. तो मेरे को कॉल आ रहा था एंड आई हैड गॉन टू द ब्रांच फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. बोला 7th के अंदर अगर तुम्हारा ये नहीं हुआ अप्रैल के, देन द डील इज ऑफ. उधर से कॉल आया उनका और उन्होंने बोला आपका हम 15% काट देंगे. कितना काट लेंगे? 15%. तो उन्होंने 15% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन वैल्यू और 15% ऑफ व्हाट यू हैव 6 लाख. आपने 6 लाख पे किया है, उसका 15%. हाँ, 15% काटेंगे. So around 75,000 or so, is it? 90,000 काटा है. Okay, हाँ.
पैसे के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे पूरा अमाउंट? तो आई ऑल्सो वॉज रियली विद लॉयर एक बोल रहा है, ब्रांच मैनेजर इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज, सिंग मैडम मेरे को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात में, लेकिन आप बोलते तो मैं रिलीज करता हूँ बिकॉज ही स्टाफ नो ही वुडंट लाइक टू ट्रस्ट पे चलता है ना हमारा। बोला आप बोलते, आप जैसा बोलो मैं करूंगा, आप बोलते तो मैं लोन रिलीज करूंगा। और मेरा डॉक्यूमेंटेशन सब मैं साइन सब किया डॉक्यूमेंट्स, और इधर कॉल के ऊपर कॉल आ रहा है, कल आ रहे हो ना, 7 बजे आ रहे हो ना, क्योंकि हमको देवनाली रजिस्ट्रार जाना पड़ेगा। हाँ, फॉर रजिस्ट्रेशन कैसे भी करो, रजिस्टर करो, रजिस्टर करके फटाफट लोन डिसबर्स करो, दैट इज व्हाट। बस 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 वो ऑटोमेटिक, मतलब हम लोग जिस दिन रजिस्ट्रेशन को जाएंगे तो इधर से वो लोन उन लोग हमको ड्राफ्ट या कुछ वो रजिस्ट्रेशन का ये वो करके, वो कुछ तो रहता है उनको, वो ड्राफ्ट देंगे एक हाथ में, वो एक हाथ से सेल एग्रीमेंट देगा मेरे को, तो तुम्हारे नाम पे आ गया। तो मैंने बोला पहले ये तो क्लियर करो कि मेरे नाम पे आ गया, तुमको पैसे मिल गए, खुशबू का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। नहीं मैडम वो तो दिसंबर तक निकल जाएगा, ठीक है ना। उनका लियन हटने के लिए पहले आपका ये निकलना, द करेक्ट प्रोसीजर इज दैट लियन हैज टू गो बिफोर द। नहीं उसमें क्या रहता है ना राव साहब, वो हम लोग जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, तो एक हाथ से हम लोग डिमांड ड्राफ्ट देते हैं जो लोन का हमारा पैसा है, और एक हाथ से हम लोग रजिस्ट्रेशन का सेल एग्रीमेंट देते हैं, वो मेरे नाम से हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसमें इश्यू ये है कि चार्ज खुशबू का है, तो हमको वो एक उनसे एक ये लेना पड़ता है कि कमिटमेंट कि आपका देते ही ऑन द सेम डे रजिस्ट्रार में हम बोलेंगे कि खुशबू का चार्ज हटा दो। ओके। तो रजिस्ट्रार में उन लोग उसी दिन देना है, तो वो एक 7 दिन कुछ लगाता है रजिस्ट्रार, उसके बाद खुशबू का नाम हट जाएगा वो प्लॉट में से। ओके, आपके प्लॉट में से लियन विल बी रिलीज्ड, करेक्ट। हाँ, चार्ज निकल जाएगा। ऑल्दो द प्रोजेक्ट दे मे स्टिल हैव चार्ज बट नॉट ऑन योर प्लॉट। दैट इज व्हाट वी वर इंसिस्टिंग। करेक्ट करेक्ट। लॉयर वाज आल्सो इंसिस्टिंग, तुम्हारा प्लॉट का हटा दो ना, बाकी का उनको देखने दो। करेक्ट। हमने पैसे दे दिए, दैट इज इट। और एनओसी भी में वही बोला है। तो वो उन लोग रिफ्यूज कर रहे थे, बोले कि मैडम वो पूरा जो चार्ज रहता है ना, वो मेरे को समझा रहे कि प्रोजेक्ट का पूरा चार्ज है, ऐसा प्लॉट वाइज वो नहीं हटेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं हटेगा, रजिस्ट्रार में अगर आप लोग बोलते हो कि इस स्पेसिफिक का निकाल दो, मुझे लॉयर ने समझाया था, तो आई कुड स्पीक विद कॉन्फिडेंस कि इस स्पेसिफिक प्लॉट नंबर 33 आप खुशबू को हटा दो, उसने पूरे पैसे हमको दे दिए है। करेक्ट। नहीं, उन लोग बिल्कुल उसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे, बोले दिसंबर को ही होगा ये, दिसंबर के बाद। तो आई कुडंट हैव कॉन्फिडेंस कि मेरा 7 लाख जा रहा है इधर से, और मेरे प्लॉट के ऊपर खुशबू का एक ये है जो मुझे पता भी नहीं कौन है खुशबू। करेक्ट। ये तो गुजरात स्टेट का है, पता कौन है क्या। क्योंकि अगर उन्होंने ये लियन नहीं हटाया, सपोज दिसंबर में नहीं हटाया, so now the question arises, where will your remedies lie? For litigating, where would you go? Would you be going to Gujarat? Exactly. Or would you go to where? Because you are in Bangalore. आप कहाँ पे जाओगे? The question of jurisdiction will become very confusing. ऐसा कुछ वो कर देंगे तो आप उसको लिटिगेट करने के लिए उधर जाओगे क्या? समझ में नहीं आ रहा था मेरे को भी कुछ। बहुत कंफ्यूजिंग था ना। राइट। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है ना। करेक्ट। और ऐसे इसमें पैर क्यों डाले? कोर्ट में जब आपको पहले ही पता है। और नोटिसेस भी आते हैं, बाय द वे, पीपल हु हैव एंटर्ड, फॉर एग्जांपल रिसेंटली वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही बॉट अ फ्लैट, ये फ्लैट हो गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, पोजेशन होने को आया। पोजेशन होने को आया तभी ही रिसीव्ड अ लेटर, आई थिंक पोजेशन हो गया अभी, ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द लैंड ओनर. Landowner writes a letter to him saying that the dealing between you and the builder we have come to know, but we want to say that the builder's dealing with us, the landowners, is not clear. He had to hand over certain flats to us, and he has to give us a schedule of which flats he is going to hand over to us, and it is not clear whether your flat is one of those flats or not. Be warned that in case of any civil action by us against the builder, you will also be named as a thing. So here he says, then he goes to the builder. Builder says, no, I have everything with clear, but they want more and all that. Finally, उससे भी झगड़ा करके वापस लेना पड़ा, और मिल रहा है या मिल गया है. The builder agreed to refund him. Right, तो डर लगता है ना वो इतना पैसा देने के बाद. Correct.
तो वो लोगों ने अगर आपको एक नोटिस भेज दिया होता दैट दीज पीपल वर नॉट ऑथोराइज बोल के, और एक वो लेटर भेजेंगे, आई डोंट नो वेदर पूरा पैसा तो आप उनके पास चला गया. नाउ दे विल से दैट दे हैव नॉट पेड आवर ड्यूज. हाँ, and the money that they were telling us to put into was the account of Earthen Hughes only. Because normally what happens if there is a charge... Earthen Hughes is the name of the company, is it? Yes, the project जिसका वो MD के नाम से वो कंपनी है. Right. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर चार्ज होगा, समझो खुशबू का चार्ज है, तो उन लोग बोलेंगे हमारी खुशबू के लोन अकाउंट में डाल दो. लेकिन इधर वो केस नहीं है, HDFC का उनका अकाउंट में जा रहा है. तो मैंने क्वेश्चन किया कि Earthen Hughes के अकाउंट में डाल रही हो, लोन में तो नहीं जा रहा है पैसा ये. करेक्ट. तो बोला नहीं मैडम, वो ऑटो स्वीप होता है. HDFC के अकाउंट से ऑटो स्वीप खुशबू को जाएगा. अब हु इज गोइंग टू चेक दैट? NOC कंडीशन बोलता है कि आपको ये लेने को हम अलाउ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारे मॉर्गेज होने के बावजूद परचेज का आपको हम राइट्स दे रहे हैं, ऑन कंडीशन दैट द फुल अमाउंट कम्स टू आवर लोन अकाउंट. नो, वी डोंट नो व्हाट इज देयर लोन अकाउंट. और कल को इधर से उन लोग बोलेंगे पैसा हमारे लोन में आया नहीं, तो आपको राइट ही नहीं था परचेज करने का. फंस गए. यू विल नॉट हैव अ वे आउट. तो फिर करेक्ट, वेरी ट्रू. दैट वाज वेरी स्कैरी. उन लोग ने 7 करोड़ लिया है खुशबू से. करेक्ट. तो मैंने इंसिस्ट किया, आप मुझे इमीडिएट अगर बोलते हो कि ये क्लियर हो रहा है तो ही बैंक रिलीज कर रहा है. I put this on the onus on the bank also. I said bank is not agreeing. They will not release this loan and I am backtracking. मेरा 6 लाख रुपए आप वापस कर दो. ऐसा मैंने स्ट्रेट अवे मेल डाल दिया उनको, रिटर्न में मेल डाल दिया. कल को कुछ मेरे को चिक नहीं चाहिए उनका. राइट. तो मैंने रिटर्न में बोला दैट बिकॉज आई सेड 1, 2, 3 पॉइंट्स. I said, firstly, we have come to know that there is a charge. Secondly, this company is in Gujarat. And this was not mentioned in their agreement also, is it? Never. Nowhere. So it is not mentioned on RERA, it is not mentioned in the agreement, or it was mentioned on RERA? No, RERA mein, I think I had called you in the night and you had gone painstakingly and you told me कि अरे खुशबू का तो कुछ वो एनकम्बरेंस, आप एनकम्बरेंस चेक किया. अब बोला कि सब क्लीन दिख रहा है. ना तो आर्किटेक्ट्स का नाम है, वो सब आपने बोला मेरे को बहुत सारी चीजें. उसका अलावा यू सेड एनकम्बरेंस में सब क्लीन है. तो वो भी एक पॉइंट था कि एनकम्बरेंस रेरा में क्यों नहीं बताया उन्होंने. हाँ, राइट. नाउ आई रिमेम्बर. करेक्ट. व्हाई डिडंट दे डिक्लेयर द एनकम्बरेंसेस? हाँ, एनकम्बरेंस डिक्लेयर नहीं किया था रेरा में. Correct. This point you had only pointed out to me. Right. And that was the clinching thing for me to fight with them कि रेरा में भी नहीं है, and that is why I am giving up this deal करके. Correct. Yes. Very dangerous. फिर अभी what is your situation? फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेल डाला पैसे वापस दे दो. तो बोले कि 30 days after you return us some documents. They wanted all original documents. Yes, agreement वगैरह सब चाहिए था. Agreement क्या था? You are not entered into agreement, no? Agreement to sell 10% जब देते हैं. हाँ. Agreement to sell एक रहता है बैंगलोर में, और बाद में सेल डीड जो है आपका फाइनल रजिस्टर होता है after you pay the full amount. So agreement to sell में they have not charged, there is no stamp duty, right? पे किया है 6,000 का कुछ पे किया, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं. हाँ, वो कुछ था, स्टैम्प ड्यूटी था. तो वो मैंने रिटर्न किया. 10 दिन लगा मेरे को. उनका जो भी पेपर आधा बैंक में था, आधा इधर था, सब उनको कलेक्ट करने में 10 दिन गया. तो 19th of April को उनको रिटर्न किया. तो बोलते 30 days from today, that is 19th of May को आपको हम 15% काट के देंगे. तो दिया उन लोगों ने. 18th April को मेरे खाते में 5,10,000 आ गया पूरा. ओके, 5,10,000 के. ओके, गुड. या 5,10,000 आया. 90,000 उन लोग अभी कुछ भी उनका ये नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हुआ उसके बाद. तभी लॉकडाउन चल रहा था बैंगलोर में. तो मैंने एक लीगल नोटिस भेजा था उनको 90,000 के लिए. 90,000 काट दिया मेरा. इट्स अ बिग अमाउंट फॉर मी. तो नहीं, बराबर है. बिकॉज सी इट इज नॉट योर बैकिंग आउट, यू आर नॉट बैकिंग आउट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन नॉन डिस्क्लोजर एंड सो ऑन.
तो अभी चल रहा है, तो मेरे को कॉल आया तुरंत, लीगल नोटिस मिलते उनको, हमको लीगल में नहीं जाना है, कोर्ट में हमको किसी का पैसा नहीं रखना है, ऐसा वैसा। बोलते 75,000 रिटर्न करते हैं आपका, हम 15,000 रख लेते हैं। तो कुछ कॉस्ट वॉस्ट डाल रहे थे, इतना कॉस्ट हुआ उतना कॉस्ट। मैंने बोला मुझे भी तो कॉस्ट बहुत हुआ, मैंने भी गिनाया उनको, तो बस 10,000 तक आई एम एग्रीइंग। उसके बाद जो भाग गए ना उन लोग, वो 10,000 तक मैं एग्री भी हुई थी। बोले ठीक है हम मंडे तक बात करते हैं। तो मंडे कभी आज तक आया ही नहीं उनका। 5,10,000 रिटर्न किया, 5,10,000 रिटर्न। हाँ 90,000 में से बोला 75 दे देते हैं आपको, 15 हम काट लेते हैं। राइट। सो देन यू टुक अ स्लाइटली सॉफ्ट स्टैंड एंड यू सेड ओके 10 रख लो। क्या बोल रहे हैं, आपको हम एक कंडीशन पे वो 75 देंगे। आपको राइटिंग में देना है कि दिस इज, कुछ तो उनका कुछ वर्डिंग था, एक लीगल वाला उनका कोई बंदा बात कर रहा था, वो उनको उसको लॉ एडवोकेट बोला था, एक्चुअली ही इज नॉट अ क्वालिफाइड एडवोकेट। वो मेरा बात हुआ था तो पता चला था ही इज नॉट अ LLB और नीदर इज LLM। जो भी है वो बंदा मेरे से बात कर रहा था, बोला आपको लिखित देना पड़ेगा कि इस डील में यू नो सम वर्डिंग्स ही यूज्ड, मतलब उनके साइड से कुछ गलती नहीं था। You have to write and give them that it is not their fault. No, there was nothing wrong with that project. I backed out for my own personal reasons. आप नहीं लेना था किसी पर्सनल रीजन से, आप लिख के दे दो तो आपको हम 75,000 वापस दे देंगे। तो उसमें मेरे को थोड़ा आड़ा ताड़ा हुआ कि मैंने बोला लिख के देंगे, पता नहीं उन लोग कुछ रिटर्न में लेंगे, फिर पैसा देंगे नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। हाँ, if they take from you that it is no fault of theirs, then you have no grounds to litigate against them. Exactly. Once you have no ground to litigate against them and they will be able to produce that in court, then why will they refund your money? और जब भी देखा कि ये लेडी बहुत टफ बात कर रही है, अभी फोन ही नहीं उठा रहे, और झूठ व्हाट्सअप करते रहता है सेल्स वाला, ईमेल भेजा तुमको तो फोन किया आपने उठाया नहीं। मैंने बोला कोई ईमेल नहीं आया, आप मेरे को प्रूफ बताओ, आपका कोई कॉल भी नहीं, कॉल लॉग में मिस कॉल भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। तो अभी उन लोग चुपचाप बिल में जाके घुस के बैठ गए हैं। अभी कुछ भी उनके तरफ से नो एक्टिविटी, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग। देख रहे हैं कि कितना टाइम तक ये आगे कितना जाएगी, देखते हैं ना, लीगल नोटिस ही भेजा है ना, कोर्ट में थोड़ी जाएगी। तो इस स्टेट पर अभी ये स्टेटस को पे आ चुके हैं। 2 हफ्ते के ऊपर हो गया आफ्टर दिस टॉक वी हैड, 2 to 3 weeks, and nothing from their side now. They're not responding to anything. Right. No. Exactly. They will, if you go to any court first, they will produce that letter. The judge will ask, did you sign this? Yes, finished. Yes, you said it is your fault. Where is the question of their fault? Whatever it is, where is the question of yes at the end of the story? Yes. So, ठीक है. This is where you are. Yes. It's dangerous out there. And that is, we have not yet gone into the point about whether there is any development potential of this rock garden. That is one more thing. See, I found that this thing to be very suspicious. The way it is worded, the RERA documents are worded in a very suspicious way. I don't know whether the land has any development potential at all. If you start constructing, will you be able to do anything other than grow? I'm joking back in those days. You're buying the land plot for growing vegetables or what? You want to grow tomatoes in that land? What is it that you are buying? Even that you may not build. They are calling it rock garden. They are not even calling it vegetable garden. They are calling it rock garden. You'll grow rocks. वही उधर कुछ भी नहीं है, एकदम बैरन लैंड, एक रॉक है एक साइड में, गेट्स भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। उधर जाते तो खाली ओपन लैंड है, खाली हवे में बात कर रहे हैं, खाली ऐसे ही पेपर में, हाँ ये होने वाला है बड़ा, इधर ये होने वाला है, गार्डन होने वाला है, इधर चिल्ड्रन पार्क बनेगा, इधर वो फलाना बनेगा, इधर ढींगना बनेगा, जस्ट लाइक दैट दे आर जस्ट बिल्डिंग castles in the air. Correct. That is quite scary. These are scary things. Yeah, people of Bangalore have to be careful for this kind of thing. Right. Chalo, thank you for sharing. Yeah, thanks a lot. Okay. Thank you very much. Yeah. Take care. Thank you. Bye.